प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada ki Jai. ISKCON Guru Vrind ki Jai. Shri Guru Parampara ki Jai. Anant Koti Vaishnava Vrind ki Jai. Nitai Go Premanande. All glories to assembled devotee. All glories to assembled devotee. All glories to assembled devotee. All praise, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Hare Krishna. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manovistam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupakadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Tapadakamalam Shri Guru Vaishnavangsha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadhvetam Savadutam Parijana Sahitam Sri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitam Sha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusuti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavbhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschadesha Tarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivashati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare हरे कृष्णा। तो एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और साथ साथ में प्रभु जी का हार्दिक धन्यवाद देते हैं। आपने हमको निमंत्रण दिया, अपने घर पे बुलाए और सभी भक्त लोग अपना समय निकाल कर उपस्थित हुए हैं। ये संकेत देता है कि हम लोगों को शुड आई स्पीक इन हिंदी और अच्छा इनको हिंदी सिखलाना पड़ेगा नहीं तो भूल जाएंगे। तो मतलब आपको भगवान की श्री कृष्ण की कमल चरणों में रुचि है, आसक्ति है, इसीलिए आप सभी लोग अपना समय निकाल कर उपस्थित हुए हैं। और विशेष करके जब लॉन्ग वीकेंड है ना, कहीं पर यात्रा पर जा सकते थे आप तो मैं आ रहा था तो मेरे मन में मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि क्या प्रेरणा है, क्या हम चर्चा करें। तो हमें स्मरण हुआ श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला 3रा अध्याय और टेक्स्ट नंबर 137। इस श्लोक में कृष्णदास कविराज जी वर्णन करते हैं कि अगर हम लोग बहुत ही जल्द कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहते हैं, वांट टू मेक अ क्विक प्रोग्रेस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो बहुत ही सुंदर उपाय बताया है। तो इससे क्या होता है, हम लोग देख सकते हैं कि दिस इज द एसेंस ऑफ डिवोशनल सर्विस। हम लोग भगवान की भक्ति करते हुए या कृष्ण कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए, whilst being associated with Krishna consciousness, Krishna consciousness is an experience, ये अनुभूति होती है, उसको एक्सपीरियंस किया जाता है। आत्मा जो है, जैसे when we are chanting Hare Krishna, when we are doing kirtan, so in the kirtan the dancing does not come by music, the dancing does not come by the melody we are chanting in. The dancing in the kirtan comes by the purity of the holy name by the chanta. That is our Prabhupada said, chanting should always be heard from the lips of a pure devotee. So, कोई बोल सकता है कि हम मंदिर में आएंगे या सत्संग में जाएंगे, घर पर प्रोग्राम होगा तो प्रभु जी आप कीर्तन गा लो। तो बोलेंगे नहीं प्रभु जी मुझे नहीं गाना है क्योंकि मैं प्योर डिवोटी नहीं हूँ।
तो ऐसा करने जाएंगे तो फिर कोई नहीं प्योर डिवोटी है, तो मतलब कीर्तन बंद, कीर्तन नहीं होना. सो वी हैव no longer have kirtan, because everyone will say I'm not a pure devotee. But by following Srila Prabhupada as it is, very important, as it is. मैं अभी टोरंटो गया था, तो डिस्कसिंग डिवोटीज के साथ में, फिर कुमार महाराज से भी मिलना हुआ. वी स्टार्टेड डिस्कसिंग दिस सब्जेक्ट मैटर कि हम लोग अपने बच्चों को देखते हैं, यू सी द यंग पीपल इन कृष्ण कॉन्शियसनेस. तो देयर अट्रैक्शन टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, क्योंकि दीज आर एजुकेटेड यंग पीपल, so they can read Prabhupada's books themselves, they hear Prabhupada speak. So it's not a matter of telling them what Prabhupada means or what Prabhupada wanted, because they can know it themselves by reading Prabhupada's books. Prabhupada's letters are there, Shikshamrit is there, Prabhupada's collection of lectures is there. So you want to verify something, you can always go back. So whilst doing all these things, जैसे आप चाय बनाते हो, ऑफ कोर्स वी डोंट ड्रिंक नॉर्मल टी, भी आप चाय बनाते हो या दूध, हल्दा वाला दूध करते हो, कुछ करते हो, तो इफ यू डाइल्यूट इट, उसको पानी डाल के उसको पतला कर दो, तो विल यू गेट द सेम टेस्ट. मतलब जो आपको सबसे एक्सपीरियंस है, मतलब जो प्रभु होंगे चाय पीने में, उम्र के हिसाब से बहुत चाय पी होगी, तो अगर चाय को रेसिपी को आप डाइल्यूट कर दो तो आपको पता लग जाएगा कि नहीं, चाय वैसी नहीं बनी है. तो वैसे ही कृष्ण कॉन्शियसनेस है. इसलिए प्रभुपाद जी, व्हाई डिड प्रभुपाद जी मेक सो मच इम्पैक्ट इन द होल वर्ल्ड? द सीक्रेट ऑफ प्रभुपाद सक्सेस इज as it is. If we had diluted, there are so many other preachers of Krishna consciousness. बहुत से भक्तजन हैं, संत लोग हैं जो प्रवचन कर रहे हैं, लोगों को प्रेरित भी करते हैं, लोगों को प्रेरित भी करते हैं, लेकिन केवल प्रेरणा उत्पन्न कर देना ठीक है, एक कुछ हद तक ये सही है, लेकिन प्रेरणा का जो फल है, द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ इंस्पिरेशन इज अटैचमेंट टू द लोटस फीट ऑफ कृष्ण. इफ दैट इज नॉट कमिंग, द रेसिपी हैज अ डिफेक्ट. ईदर जो रेसिपी का फॉर्मुलेशन है वो आप सही बराबर फॉलो नहीं कर रहे हो, और या तो फिर एक्सपायर्ड मैदा आप यूज कर रहे हो, तो केक बराबर नहीं बनेगा. यू मस्ट बी थिंकिंग, व्हाई इजंट दिस माय केक राइजिंग? इधर यू गॉट एक्सपायर्ड फ्लावर or expired cooking soda or whatever you're using to create the rice. There is something wrong. So the whole Krishna consciousness, the whole recipe is the guru, the siksha, and the disciple. ये कंप्लीट रेसिपी है. गुरु बहुत कृपा कर सकता है, गुरु कृपा की मूर्ति है, श्री कृष्ण कृपा मूर्ति. गुरु इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्ण's mercy. But if we are not following the process as it is, then it will give a different result. Or if the disciple is not sincere, then you will have a different result. So you could have the guru as it is, but the process and disciple are not as it is, then the outcome will be different. If you have the disciple as it is, and the guru and the process is not as it is, sometimes ये कभी कभी होता है. कितने लोग हमारे संस्था में आते हैं, प्रभुपाद जी के संस्था में आते हैं, they pick up Krishna consciousness. And today I met one devotee from Edmonton, came to see me. So we started discussing this.
Now, so many devotees are coming to the temple. So many devotees were coming to the temple. So when he said, "Where coming to the temple?" So I said, where are they now? So he said, they are doing something else. So they've picked up Krishna consciousness. They've taken Krishna consciousness into their homes. But then you disconnect it with Srila Prabhupada. What is the disconnection by Srila Prabhupada? Prabhupada said, ISKCON is my body, myself. So if you disconnect yourself from ISKCON, means you are disconnecting yourself from Srila Prabhupada. Now you got these beautiful lights installed, spotlights installed, chandeliers installed, right? And you connected it to the power supply. So you've tested all the lights are working well, this is pointing in the right direction, so everything is well. लेकिन फिर आप क्या करो, जो बिजली आ रही है उसको कट कर दो, तो फिर क्या ये रोशनी देगी? सुंदरता बना देगा. So you can be a devotee, you can be a decorated devotee. It will be very nice. But there will be no power, no mercy flowing. When we make spiritual advancement, देखो हम लोग, we always want to know कि, please come in. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna. So when we are practicing Krishna consciousness, and you would like to know that you are making spiritual advancement, हरे कृष्ण, तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सरल है, हम लोग अपने आप को मेजर करते हैं, खुद को मेजर करते हैं. How am I chanting? How am I doing service? How am I reading? These are personal measurements. ठीक है? तो these are also theoretical measurements. By theory, you can measure like this. Effective measurement क्या होता है? Effective measurement क्या होता है? When we are trying to see if I am able to be the transparent via medium to the mercy of Krishna flowing through the disciplic succession, Srila Prabhupada, and we can pass it on to someone else, others. मतलब चैतन्य महाप्रभु क्या बोले? चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा है, यार देख तार कह कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु है तारा ही देश. You may be worshipping Krishna very nicely. You may be making offerings to Krishna very nicely. So we have to grow a little bit. थोड़ा बढ़ना पड़ेगा. जन्म सार्थक करी कर पर उपकार. जब तक हमारे हृदय में पर उपकार की भावना नहीं आती है, मतलब अभी भक्ति में अभी पूरा नहीं हुआ है. तो पर उपकार की भावना कैसे आती है? हम खुद चैंट कर रहे हैं, हम खुद चांट कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम दूसरों को भी चांट करें, क्योंकि हम कथा सुनना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि और लोग भी हमारे साथ में सुने. तो ये दोनों कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है ना, अपना सार्थक हो रहा है और दूसरे का भी कर रहे हैं. इसी प्रकार से हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, दूसरे को भी कराते हैं. प्रसाद वितरण करते हैं, खुद प्रसाद पाते हैं और दूसरे को प्रसाद वितरण करते हैं. सो ऑल द एक्टिविटीज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस. लेकिन
कभी कभी जब शुरू में व्हेन यू कम इनटू कांटेक्ट विद कृष्ण कॉन्शियसनेस, नेक्टर डिवोशन बताया ना कि नए नए भक्त होते हैं तो उसको बोलते हैं नियोफाइट डिवोटीज। नियोफाइट डिवोटीज का मतलब क्या होता है? फाइटिंग विद माया, नियोफाइट। नियोफाइट डिवोटीज का मतलब होता है न्यू डिवोटीज फाइटिंग अमंग्स वन अनदर। अगर ये होता है मतलब यू आर ऑन द कनिष्ठ अधिकारी। कनिष्ठ मतलब नियोफाइट डिवोटी मतलब होता है कि आप कृष्ण को, maybe Prabhupada ji is calling on Krishna, maybe you gave the right answer. तो कनिष्ठ भक्त मतलब होता है कि कृष्ण कॉन्शियस प्रोसेस में हम भगवान को समझने लगे, इसीलिए भगवान का पहचान हो गया। जब भगवान का पहचान हो गया है फिर भगवान के पहचान को वहीं पर रोक देते हैं। हम लोग भगवान से आगे कुछ देखना नहीं चाहते। तो कनिष्ठ होता है वो भगवान को पहचानता है, लेकिन भगवान से आगे कौन है? भगवान से बढ़कर कौन है? भक्त, डिवोटीज। कृष्ण बोलते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म का हानि होता है तब तब भगवान आते हैं। डिवोटीज ये वेट नहीं करते हैं कि किसी व्यक्ति का पतन हो जाए। लेट अधर्म बी देयर, देन विल गो एंड शेयर दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस। इसीलिए डिवोटीज को बताया गया है वो भगवान से बढ़ के होते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली। बोलते हैं कि मैं कंगाल हूं, कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो, तुम्हारा सकतिया चे। जो डिवोटीज होते हैं, वैष्णव होते हैं, उनमें ये पावर होता है, शक्ति होता है कि वो दूसरे को भगवान दे सके। तो इसको आप अप्लाई करो अपने आप के ऊपर। When do you know that you are empowered? When you have the ability to give Krishna to others. और चैतन्य महाप्रभु बोले कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। There is no hope for progress, there is no advancement without the compassion of Krishna. तो भगवान किससे खुश होते हैं? भगवान किससे खुश होते हैं? भगवान श्री कृष्ण एक बार गए वृंदावन में गैया चराने के लिए। So everyone knows this story from Srimad Bhagavad Gita, Bhagavad Puran 10th canto, Krishna book. When Krishna sent Balaram and other cowherd boys to go and fetch eatables from the brahmanas who were performing yajna. So number one, the lesson there is, Krishna is Bhoktaram Jagya Tapasam. भगवान कृष्ण को सब कुछ अर्पण करना है, लेकिन कृष्ण is always concerned about his devotees, his बाल सखास। उनके भक्त बाल सखा जो थे, वो समय हो रहा था, वो भूखे हो रहे थे, तो भगवान उनके लिए, भगवान कहते परित्रणाय साधुना। तो जब हम लोग एज इट इज पालन करेंगे, Prabhupada ji as it is took the instructions of Bhaktisiddhanta Thakur, the Prabhupada ji created. Bhaktisiddhanta Thakur gave the same instructions. Bhaktisiddhanta Thakur was sitting, Prabhupada ji was sitting, and so many other devotees in the Gaudiya Math were also sitting there. तो Bhaktisiddhanta Thakur बोले Prabhupada ji को कि you must preach to the English speaking world. If you have money, print some books and distribute. तो Prabhupada ji उसको ले, प्रभुपाद जी वो इंस्ट्रक्शन को एज इट इज ले लिया। सुमति महाराज जी प्रभुपाद जी को बोले हम लोग अभी यहाँ पर आए, मैं यहाँ पर आया हूँ, ट्रॉपिकल कंट्री से आता हूँ, तो यहाँ तो समर भी बहुत ठंडी है। मई के महीने में। हाँ, तो प्रभुपाद जी को सुमति महाराज जी बोली मरने के लिए जाना है। वही लेकिन प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, मेरे गुरु महाराज का आज्ञा है, आदेश है। I remember just few days ago I was listening to हमारा भक्ति का पथ कैसा है, हमारा मिशन क्या है। हमारा मिशन का आधार है भगवद गीता। और भगवद गीता कैसे हुआ?
कृष्ण और अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर एवरीवन वांट्स टू ईट। अगर प्रसाद प्रोग्राम में हम लोग आए हैं, आज प्रभु जी प्रसाद ना दे तो सभी लोग बड़े रुष्ट हो जाएंगे। कोई नहीं बोलेगा प्रभु जी आपके घर पर प्रोग्राम बढ़िया था। प्रभु जी आपने प्रसाद दिया, आपका प्रोग्राम एकदम बेकार। मुझे याद है एक महाराज प्रवचन कर रहे थे तो बोले अयोध्या में बहुत साधु लोग रहते हैं ना, तो बोले साधुओं के मंदिर में क्या मिलता है, रोज सुबह खिचड़ी ही मिलती है। तो कभी कभी कोई दान दाता आ जाता है तो थोड़े पकौड़े भी मिल जाते हैं, कुछ मिठाई भी मिल जाता है। तो बोले साधु लोग सब बैठे होते हैं प्रसाद लेने के लिए, तो जब प्रसाद बंटता है तो एक किनारे से बंटता है। तो जैसे प्रसाद प्लेट में आता है तो जिस साधु के प्लेट में पहले आता है वो साधु जो होता है वो सीताराम जी को बुलाता है, सीताराम सीताराम। तो प्रसाद खुश हो जाते हैं। तो बोले जिस दिन केवल खिचड़ी आता है तो साधु पहले से ही बोलता है सीताराम। जिस दिन पकोड़े आ गए तो सीताराम सीताराम। और मिठाई अगर मिठाई आ गई तो फिर पूरा राम दरबार याद करते हैं। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है उसको एज इट इज पालन करना है। दिस इज द पोटेंसी। नहीं तो क्या होगा, when we do not follow as it is, then we have to face the problem that people will start leaving. We had a long discussion भक्ति मार्ग महाराज के साथ में। हमारे पूरा संस्था में ऐसी थोड़ी सी आपत्ति है भक्तों को, और बात यही होती है। Then we came to the conclusion कि बात ये है ना, प्रभुपाद जी सदगुरु हैं, प्रोसेस जो है वो बोनाफाइड है, युग का धर्म है, और दूसरे एंड पे हम सब शिष्यगण हैं। तो हम लोग यही तीन कॉम्बिनेशन में कहीं गड़बड़ी हो रहा है। प्रभुपाद जी में तो गड़बड़ी नहीं हो रहा है, ये तो परफेक्ट है। प्रोसेस भी बराबर है, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम लोग प्रोसेस को डाइल्यूट करते हैं। तो प्रॉब्लम डाइल्यूशन ऑफ द प्रोसेस में हो सकता है, और तीसरा हमारे में हो सकता है कि हम लोग बोलते हैं प्रभु जी हमसे नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है। तो हमको ये समझना है कि ये क्यों नहीं हो रहा है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट क्यों हमसे हो नहीं रहा है, ये हमसे क्यों नहीं हो रहा है। द रीजन व्हाई वी आर नॉट एबल टू डू इज ऑफ कोर्स वी विल से, कोई बोलेगा प्रभु जी हमारा पूर्व कर्म है, इट इज माय प्रीवियस कर्म, देयरफॉर स्टॉपिंग मी फ्रॉम डूइंग इट। बट द प्रीवियस कर्म कैन बी चेंज्ड, इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। How do you destroy the previous karma? By your free will. You just have to make a choice for Krishna consciousness to be able to relieve yourself from previous karma. तो कर्म का दोष है कि आपका दोष है? कर्म का दोष नहीं है। कर्म तो भगवान का नियम है, विधान है, जैसा करनी वैसा भरनी। लेकिन जैसा करनी जो है, जो करना है, वो तो आपके हाथ में है, आपका फ्री विल है, आपका चॉइस है, हमारा चॉइस है। तो हम लोग अपना फ्री विल को सही प्रकार से यूज नहीं करते। Why don't we use our free will properly? Because we don't realize the magnitude of the problem of material existence. मतलब कि ये भौतिक संसार में जन्म लिया है, दुखालयम शाश्वतम जो भगवान घोषणा किए हैं, हमको इसका आभास नहीं है। हम लोग के वी डोंट हैव अ फील ऑफ व्हाट्स हैपनिंग। कभी कभी ऐसे होता है ना, कहीं पर कुछ बातचीत हो जाती है, कुछ टेंशन हो जाता है, तो दूसरा भक्त आता है, मतलब प्रभु जी क्या हुआ, आई नो ही इज वेरी नॉर्मल। तो दूसरे लोग बोलेंगे इसको कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। तो ऐसे ही मटेरियल वर्ल्ड में दुखालयम शाश्वतम, एवरीथिंग इज टेम्पररी, ये हम लोग को इसका
आभास नहीं है, वी डोंट हैव अ फील ऑफ दिस। और इट हैपन्स एवरी डे हमारे जीवन में। वी वर्क जॉब, नौकरी कर रहे हो, तो आज अच्छा किया तो बॉस बड़े प्रसन्न हो गए, मालिक बहुत प्रसन्न हो गया, तो आपको बड़ाई कर रहा है। कल आप एक गलती करें, फिर आपकी पिटाई हो जाए। मतलब योर प्रेज वाज नॉट परमानेंट, इट्स टेम्पररी। और हमारे परिवार के लेवल पे हम लोग देखते हैं, आज पति पत्नी में बनता है, वैलेंटाइंस को बनता है, दूसरा दिन फिर पति को पता लगता है कि बटुआ तो खाली हो गया। फिर थोड़ी टेंशन हो जाती है। बच्चे जन्मते हैं, बहुत सेलिब्रेशन होता है, फिर बच्चे शरारत करते हैं, फिर हम लोग को थोड़ा अपसेटनेस आता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वी शुड नॉट हैव अ फैमिली, शुड नॉट हैव चिल्ड्रन, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, बट ये रियलाइज करना कि जीवन में जो भी कुछ करेंगे, प्रभु जी पराठा बनाएंगे तो आज बहुत बढ़िया बनाया, फिर दूसरी बार बनाएंगे तो हम लोग थोड़ा कुछ कम है, नमक कम है, कुछ कम है, मतलब एवरीथिंग इज टेम्परेरी। और ये अगेन इट्स अ चॉइस फॉर यू टू टेक नोट ऑफ। तो आप अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे, देन इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वी हैव टू, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वी मस्ट फील द एजेंसी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। और एजेंसी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस तब तक फील नहीं होगा जब तक हम लोग मटेरियल नेचर का जो टेम्पररी नेचर है और अशाश्वत और दुखालयम जो मिजरेबल नेचर है, उसको हम लोग रियलाइज नहीं करेंगे। हम लोग प्रसाद पाएंगे, आज हम प्रसाद पाएंगे, आपको कोई वस्तु बहुत बढ़िया लगे तो आप उसको 3-4 बार लेके खा लो, फिर खाने के बाद में फिर आपको पछतावा आएगा, क्योंकि मैंने ओवर ईट कर लिया है, अब हार्ट बर्न होने लगा है, इनडाइजेशन होने, अब तबीयत बिगड़ने लगा है, ये होने लगता है। तो हम लोग को एक कॉन्शियस वे में, इट्स अ कॉन्शियस चॉइस, इट्स अ कॉन्शियस चॉइस। लेकिन शायद हम लोग का ऐसा सिस्टम हो गया ना, हम लोग सब भारत से बड़े होते हैं, तो बच्चे को कुछ और करना भी हो या ना भी करना हो, सभी को इंजीनियर बनना है, सभी को डॉक्टर बनना है। वो बच्चे का कोई चॉइस है ही नहीं, आपको जाना है तो जाना है। तो ये मटेरियल नेचर का जो ये जो स्वभाव है, जो मिजरेबल नेचर है, जो टेम्पररी नेचर है, इसके बारे में यू एंड आई हैव टू कॉन्शियसली थिंक एवरी डे। भगवान तो करते हैं, भगवान तो हमको दिखाते हैं। भगवान क्या करते हैं? बाल सफेद करते हैं। बाल सफेद करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? उस पर कालिक लगाते हैं। भगवान याद दिलाते हैं, लेकिन हम उसको भूलना चाहते हैं। देखो, ये हमारा चॉइस है, वी वांट टू फॉरगेट इट। तो हम लोग उसको पुश अवे कर रहे हैं, फिर हम लोग कैसे बोलेंगे कि हमको, फिर भगवान हमको आंखें कमजोर कर देती है, फिर हम चश्मा लगा लेते हैं, फिर भगवान हमको दांत में पीड़ा देने लगते हैं, बहुत तकलीफ होती, फिर डेंचर्स कर लो, फिर घुटनों में, कमर में सब शक्ति कम करने लगते हैं, तो हम लाठी ले लेते हैं। मतलब एवरी टाइम वी आर ट्राइंग टू डिफाई जो फैक्ट है, उसको हम लोग भुलाना चाहते हैं, वी वांट टू हाइड इट। तो जब हम लोग इसे हाइड करने का प्रयास, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जिसको दिखता नहीं है तो चश्मे ना बनाए, मतलब वो चश्मे आप सुबह उठाओ तो आपको याद आना चाहिए कि मेरा दिन जा रहा है? अब चश्मे लगा के दिखना है तो भागवत देखना है, अब दूसरा क्या देखोगे? तो ये थिंग्स को हमको रिमाइंड करना। आप रास्ते पर जाओ, यू आर ड्राइविंग, तो वाल्स यू आर ड्राइविंग, मतलब मन में ऐसा विचार तो आना चाहिए ना, मैं कितना जीवन से काम कर रहा हूँ, भाग दौड़ में, ये घंटे घंटे ट्रैफिक जैम में मैं पड़ा रहता हूँ। अभी तो समर है, आप सभी लोग बहुत खुश हैं। जिस दिन स्नो गिरने लगे आपको कहाँ पे, सोचना तो चाहिए भाई, मैं इतना तकलीफ है, घर से बाहर निकलने से पहले उसको हटाना पड़ता है। भगवान हमको इतना अच्छा
मनुष्य शरीर दिया है। 40 टेम्परेचर हो हाँ? तो भी बुरा हाल। हाँ, लेकिन नहीं बुरा है, मतलब 2-4 जैकेट लगा के ये तो करना है। नहीं तो मतलब ये हो जाता है ना, ये हो जाता है। मतलब आई गेट रिमाइंडेड, प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड और डोंट टेक मी रॉन्ग, बट एक एक्सप्रेशन है ना, तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते भागवत में, पोपट में लिखते हैं प्रभुपाद जी ना, कि जो धोबी का गधा होता है, वो सोचता है कि कदम लेने से ही, इतना बोझ यहां से वहां उठा के ले जाने से ही जो मालिक है वो हमको घास देता है। वो मूर्ख को पता ही नहीं है कि जिस रास्ते से जा रहा है उसकी दोनों ओर घास है, वो इतना मुसीबत क्यों उठाए, वो खा सकता है? लेकिन उसको समझ में ही नहीं आता है, उसको समझ नहीं आता है। तो ये कभी कभी वेदव्यास प्रभु जी यहाँ पर हैं, तो जो ओरिजिनल ग्रंथों को लिखने वाले हैं वेद व्यास जी, वो भी ऐसे कभी कभी गुस्सा करते हैं हमारी मूर्खता देखकर। स्वाविदवर होस्त्र खरे समसुता men who are like dogs, horse, camels and asses, जो मनुष्य जानवरों की भांति होते हैं। तो हम लोग को ऐसा नहीं बनना है, कभी कभी हमको थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए। तो जब इसे ध्यान दोगे, जब ये विचार पर ध्यान दोगे, इस विषय पर ध्यान दोगे, तो क्या होगा? यू विल हैव द डिजायर टू थिकन योर कृष्ण, अपना जो कृष्ण भावनामृत है उसको और भी घनिष्ठ बनाने का इच्छा होगा। नहीं तो ચાલે બધું ચાલે, ठीक है, ऑल राइट है, ऐसा हो जाएगा। जब तक हम लोग बैक टू गॉडेड नहीं जाते, जब तक जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं छूटता है, तब तक ऑल राइट नहीं है, ये ऑल राइट नहीं है। तो वी हैव टू, जब हम अपने आप को सीरियस लेंगे तो फिर हम दूसरे को भी, योर हार्ट मस्ट पेन at the sight of others suffering in the material world। तो चलो वहां नहीं जाएंगे, तो पहले अपने आप के सफरिंग पे तो दुख होना चाहिए। तो we have to follow this as it is। तो चैतन्य चरितामृत में अंतलीला चैप्टर 3 टेक्स्ट 137 कृष्णदास कविराज जी लिखते हैं, निरंतर नाम लो कर तुलसी सेवन, अचिरात पावे तब कृष्णेरा चरण। अचिरात मीन्स वेरी क्विकली, प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन किए, चांट द हरे कृष्ण मंत्र continuously and render service to the tulasi plant by watering her and offering prayers to her. In this way you will very soon get the opportunity to be sheltered at the lotus feet of Krishna। आपको ये भाग्य प्राप्त हो जाएगा कि you will be sheltered by the lotus feet of Krishna। So again, word of caution, when we become devotees, we come in the shelter of Krishna, we come in the shelter of Guru, we come in the shelter of Vaishnavas, you have gotten an opportunity। मतलब you need to perform the seva and devotional activities, but this is the fuel। गाड़ी आपके पास है बढ़िया, लेकिन उसमें अगर पेट्रोल ना हो तो गाड़ी नहीं चलेगी, तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो ऐसे हम सभी के जीवन में जो चांटिंग है और जो तुलसी की सेवा है, ये सबसे अटमोस्ट इंपॉर्टेंस का होना चाहिए। जब फ्यूल कम होगा तो दूसरा गाड़ी फिर रुकने लगेगी, गाड़ी तुरंत भी नहीं रुकेगी, थोड़ी झटके देगी तब रुक जाएगी। तो दिस वी मस्ट ऑलवेज, you have a wonderful temple here, so all the devotees should have a very sweet loving relationship। जो मंदिर में रह रहे हैं, they are sadhus, they have chosen to give up the comfort of the material world and taken a life of austerity। Aren't they worshipable for doing that? Just do that। हम लोग नहीं कर पा रहे ना,
अगर कर पाते तो हम ही चले जाते मंदिर में। हिज होलीनेस महाविष्णु महाराज को एक बार वो डोनेशन मांगने गया किसी को, तो एक बड़ा बिजनेसमैन बोला उसको, ये तुम लोगों का बहुत ही इजी धंधा है, किसी के पास जाके हाथ पसार के दान मांग लो, जो तुम लोग मेहनत करते नहीं। तो महाराज बोले चलो इतना इजी है तो आप भी गहरा वस्त्र पहन लो और हमारे साथ हाथ पसारने चलो। ये हाथ पसारना बहुत ही डिफिकल्ट है। इवन समटाइम्स यू आस्क पीपल फॉर डोनेशन टू प्लीज स्पॉन्सर द फीस। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रति घरे घरे गिया कोरोई भिक्षा, यू हैव टू बैग। सब गुरु को हम लोग पत्र लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ईमेल में क्या लिखते हैं, आई बेग टू रिमेन योर सर्वेंट। मैं भीख मांग रहा हूं कि मुझे अपने कमल चरणों में रहने दो। भगवान के सामने जाके भीख मांगना चाहिए। शायद इसीलिए जो इस्लाम धर्म को मानते हैं वो प्रार्थना ऐसे ही अर्पण करते हैं, भीख मांगना होता है। तो फॉर सर्विस ऑफ कृष्णा, फॉर चांटिंग, भीख मांगना पड़ता है। तो महाराज बोले इतना इजी है तो आई डोंट डू इट। बोले हमसे नहीं होगा। और जो साधु लोग हैं वो क्या दृष्टि देखते हैं, वो ये दृष्टि देखते हैं कि ये सभी लोगों के पास भौतिक सुविधा है। आप सभी के पास यू हैव ऑल द मटेरियल ऑपुलेंस दैट एनी पर्सन ऑर्डिनरली विल वांट, आपके पास है, सो यू आर एंजॉयिंग लाइफ। सो व्हाई डू यू हैव टू टेक द trouble of following the four relative principles and chanting Hare Krishna? Because you are spiritually inclined. यहाँ कैलगरी में कितना लोग रहते हैं, कितना पॉपुलेशन है यहाँ? 4 to 5 2 million, 3 million? 4 million, 1.2 million. 1.2 million, okay. So 1.2 million. 1.2 million हमारे कितना डिवोटीज है, नंबर कितना है हमारे डिवोटीज, मतलब फर्स्ट इनिशिएट, सेकंड इनिशिएट, कांग्रेगेशन मेंबर्स और जो टेंपल कमर्स है। अच्छा चलो इसको छोड़ दो, आपके रथ यात्रा में कितने लोग आते हैं? 5,000 डिवाइड बाय 1.2 मिलियन। समझ में आया? हम लोग एकदम एक्सटेटिक हो जाते, जय जगन्नाथ, जय हरि बोल। We all put a round of applause for 5,000 people who attended the Rath Yatra. Okay, what about the other 1.195? उनका क्या हुआ? प्रभु जी बोलते हैं कि किसी भी देश में प्रभु जी प्रचार जब स्थापित करते हैं तो प्रभु जी बोलते हैं जब तक उस देश के आदिवासी भक्त ना बने, यू मस्ट नो योर प्रीचिंग वर्क इज नॉट कंप्लीट। अभी नहीं हुआ तो हमको वो करना है। इसीलिए प्रभु जी रथ यात्रा लेकर आगे, रास्ते पर लेकर आगे, भगवान को, कीर्तन को रास्ते पर लेके आगे। तो अगर हमको ये शक्ति मिलता है तो ये दो चीज से मिलता है, चांटिंग हरे कृष्णा एंड वर्शिपिंग तुलसी माँ। बहुत सरल है, वेरी इजी। वी कैन ऑल लर्न दिस वर्स एंड रिमाइंड आवरसेल्व्स एवरी डे। निरंतर नाम लो कर तुलसी सेवना, निरंतर नाम लो कर तुलसी सेवना, अचिरात पावे तबे कृष्णेरा चरण, अचिरात पावे तबे कृष्णेरा चरण। तो केवल थोड़ा से याद करना है, 3 वर्ड याद करना है, निरंतर नाम लो, ये फर्स्ट लाइन हुआ। सेकंड, कर तुलसी सेवन, फिर अचिरत पावे तबे कृष्णेरा चरण। बस इतना सरल है।
निरंतर नाम लो कर तुलसी सेवना, अचिरत पावे तबे कृष्णेर चरण। निरंतर नाम लो कर कृष्ण तुलसी सेवना, अचिरत पावे तबे कृष्णेर चरण। तो ऑल इन ऑल हम लोग देख सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं जैसे these two things, chanting and worshipping Tulsi Maharani is like the thread which binds the whole Krishna consciousness हमारे जीवन के। So always remember that कि ये हमको शक्ति प्रदान करता है, ये हमको empowerment देता है। तो whilst you do everything else you do, whilst you do everything else you do, you must ensure that this must be there. अगर हम लोग चांटिंग बराबर नहीं कर पाएंगे और तुलसी जी का सेवा भक्ति का प्रार्थना नहीं कर पाएंगे तो भागवत में बताया ना कि if you do anything without chanting properly, then it is like offering oblations into ashes. जैसे आप हवन यज्ञ कर रहे हैं तो बिना आग के आप राख में आहुति दोगे, क्या वो यज्ञ होगा? So you must make sure that this takes priority. तो कोई बोलेगा माता जी मेरे को प्रश्न की थी ना कि you are staying in the temple, so sometimes you are so much of service, so you are not able to properly chant, or you do your things in a proper manner. That is why Prabhupada ji said, if you love me, you cooperate. तो सभी भक्तों को एक दूसरे के भक्ति में योगदान देना होगा. You give a helping hand. भक्ति हम लोग अकेले नहीं कर पाएंगे, भक्तों के संग में होगा. अभी भक्तों के संग में होने से, हम लोग सत्संग करने से, हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, है ना? और अगर इन्हीं भक्तों के प्रति हम अपराध कर दें तो हमारा भक्ति विनष्ट भी हो जाएगा. इससे भक्ति बन जाएगा और इससे भक्ति नष्ट हो जाएगा. तो वी मस्ट, मुझे इस पर स्मरण आता है, भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज कहते हैं कि वी मस्ट नो कि हमारा भक्ति हर एक व्यक्ति के कारण से है. माता पिता है, आपको जानना चाहिए आपका जो भक्ति है वो बच्चों के कारण से, क्योंकि अगर बच्चे ना होते तो लव एंड अफेक्शन क्या होता है इसका एक्सपीरियंस कैसे होता है? जो चिल्ड्रन है उनको देखना है कि अगर माता पिता नहीं होते तो वरिष्ठ लोगों का सेवा करना ये हमको कैसे मिलता, कहां सीखते इसको? बच्चों को जानना चाहिए कि पेरेंट्स होते हैं तो दे हैव एक्सपीरियंस, तो वी हैव एन एक्सेस टू विजडम. नहीं तो नहीं होते तो कहां से विजडम मिलता हमारे को? सो एवरीवन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर ओन स्पिरिचुअल लाइफ. आप जाते हो, हम लोग सब लोग मंदिर जाते हैं तो हमारी सभी को इच्छा होता है कि हमें थोड़ा महाप्रसाद मिले. वो महाप्रसाद जो है वो भगवान का आशीष है, लेकिन भगवान के आशीष भोग पर पड़ा. भोग किसी ने बनाया है, जो भोग बनाया है उनका शुद्ध विचार था, उन्होंने अपने इंद्रियों से सेवा की है. जब उनका शुद्ध विचार था, शुद्ध तरह से बनाया है, तब भगवान उसको स्वीकारे हैं, तब भगवान स्वीकारे हैं, तब महाप्रसाद बना है, तब महाप्रसाद हुआ है, तब हम एक अन्न भी प्राप्त करते हैं तो उससे हमारी शुद्धि होती है. होल प्रोसेस इज इंटरडिपेंडेंट. होल प्रोसेस इज इंटरडिपेंडेंट. सो कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स 6 पॉइंट्स ऑफ सरेंडर में बताया गया है, ऑलवेज डिपेंड ऑन कृष्णा. तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्णा का मतलब क्या होता है? कृष्णा, कृष्णा's name, कृष्णा's form, कृष्णा's paraphernalia, कृष्णा's devotees, कृष्णा's pastimes. कभी कभी ऐसे थोड़ा तोड़ तोड़ के भी विचार करना चाहिए. 6 points of surrender, very nice, सभी को याद है. Accept whatever is favorable, reject whatever is unfavorable, always depend on Krishna.
लेकिन फिर उसको जानना चाहिए उसका मतलब क्या होता है, उसका पूरा मतलब क्या होता है. सो दिस इज हाउ यू विल बी फुली एब्जॉर्ब्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस. अभी हम लोगों को लगता है हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस करते हैं, हम लोग मंदिर जाते हैं, थोड़ा सेवा करते हैं, फिर थोड़ा अपना भी नौकरी करते हैं, फिर ये भी करते हैं वो भी. बाय नो मीन्स प्लीज कंटिन्यू टू डू दैट. लेकिन इन सब विषयों पर विचार करने से आप सोचेंगे हाउ आर अदर्स, कि प्रभु जी ये कर रहे थे, प्रभु जी के फैमिली था, प्रभु जी नौकरी कर रहे थे, नाउ दे आर मेकिंग स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, नाउ दे बिकम, they are thinking of Krishna more and more, and we are thinking, how do we do? How do you do? You only have to think. Whatever you are doing, think. जैसे एक बारी में आया था तो मैं आप सभी लोगों को बोला था ना कि आप जीवन में जो भी कर रहे हैं always think कि always ask this question in your head. Will this please Krishna? Will Prabhupada ji be pleased by this action? ना? तो इस बार आप आज हमारा आखिरी प्रोग्राम है ना, गोइंग टुमारो. सो लर्न दिस सूत्र नाउ, द सेकंड मंत्र, जस्ट लाइक यू टेक सेकंड इनिशिएटिव, टेक गायत्री मंत्र. सो द सेकंड मंत्र इज you must think about the things that you are doing, that what the effect of this should be and what is the example I am. Chanting से हमको कृष्ण प्रेम आना चाहिए. So am I getting Krishna प्रेम? Krishna प्रेम means love of Krishna. Love of Krishna means अभी हमने चर्चा किया what is Krishna? Love for Krishna's pastime, love for katha, love for devotees, love for Krishna's paraphernalia. So when you have love for Krishna's paraphernalia, then you'd always want to say, I was very, just 2 days ago in Toronto, we went to the morning program. So Bhakti Maharaj was there. So after the morning program, I saw Maharaj pick up all the chairs, pick up all the sitting mats, put things in the right place. तो मुझे स्मरण हुआ ना, महाराज गुरु हैं, दीक्षा देते हैं, सन्यासी हैं, so he could boss around ना, प्रभु जी do this, put this, put that. But no, क्योंकि he is thinking, his mind is thinking कि everything is Krishna. So the curtains will open. हमारे गुरु महाराज कहते थे, तमाम कृष्ण महाराज used to say, when the devotees are in the temple, when the deities curtain open, you must think, Krishna will be seeing everything. So is everything nice, clean, and we don't see Krishna. Krishna sees us. It's like you go shopping. When you go shopping, you look at good things. जो टमाटर एकदम बराबर लगता है, तो थोड़ा से काला दाग होगा, आप लेंगे उसको आप काट के यूज कर सकते हैं, but you still don't want it. There's a way to use it, but you still don't want it. कृष्णा तो ओरिजिनल परफेक्ट पर्सन है, और हम लोग सब सड़े टमाटर की तरह हैं, हम लोग चाहते हैं भगवान को एक्सेप्ट कर ले. सो वी नीड टू पॉलिश अप आवर कृष्ण कॉन्शियसनेस. सो थैंक यू वेरी मच. किसी को कोई क्वेश्चन है? आई थिंक वी हैड प्रोग्राम एट प्रभुजी's place, and many devotees said it was good. We had a lot of questions and answers. So thank you very much. Thank you for the lecture. You mentioned that we noticed that some devotees they come to the temple and then they leave, and so what should we focus more on? Preaching to new devotees or doing devotee care for the devotees that are already here? Krishna's nature, when you talk about Krishna, Krishna is absolute. ठीक है, कृष्णा एब्सोल्यूट है. सो देयरफॉर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, मेकिंग न्यू डिवोटीज एंड केयरिंग फॉर वैष्णवस एंड सर्विस टू वैष्णवस इज इक्वली important. Just like you have a family, so you will say, do I give priority to my job or do I give priority to my family? If you give all your priority to the family, progress in your career. If you give all your priority to your career, you become a very successful person.
but then you will not have a family to celebrate with. So it has to be both. It is equally important. Experienced devotees are there, senior devotees are there. They are meant to give us guidance. इसीलिए हमारा वैदिक सब्जेक्ट Radha Madhav is smiling every day, right? So if you see Radha Madhav and you say, when he's smiling, I'm blessed. But we don't have a feel whether Radha Madhav is smiling for our good thing. So very, very, what senior devotees have sacrificed in their life. Those early days of our society has been, our senior. I remember the temple president when we became devotees, and I think it is only justice to glorify that Prabhuji, Guru Kripa Prabhu and Dakshina Mataji, my senior god brother or sister. No, that's true. But if some others, Hare Krishnas are doing this type of but they are sacrifices. These are very sacrifices. I'm sure we have Vidyas Prabhu with us. Sometimes when asking of the early days of Krishna consciousness here, it was so much sacrifice. With that, maybe a small amount, say just $100 in India, and you got that help, you are able to achieve what you wanted, and day after tomorrow you have much more money, right? But can you ever fill up or equate anything to the shortfall of $100 that you had that day, without which you wouldn't be able to do what you have done? So I can repay you today. For $100 I can give you $1,000. I know, senior devotees are very important. It's a culture that we need to inculcate in people. Okay, any other? Yes, Ram. How old do you need to be for initiation? Huh? How old do you need to be for initiation? Prahlad Maharaj says, Komar, Acharet, Pragya. You were Prahlad in the drama there. The story of Swami Narayan is, basically, at the age of 7 or so, his parents passed away and then he traveled all over. So, that's initiation. You can take the story. Okay, any other? Yes, please. So making the adjustment or changing the principle. Making an adjustment and changing the principle. So the principle is always remember Krishna and never forget it. Devotees. Adjustments, right? Adjustment comes on a lower level. Maintaining the principle is higher level. Now we can make an adjustment to engage someone in Krishna consciousness. So you are doing 8 rounds. Continue to make tremendous spiritual advancement, and please remain into shelter of Srila Prabhupada, and please rethink, all the people we had, where are they? Bring them back. And that is not enough. We need more new people. So, your question has summarized everything. There's nothing more I can say. A very powerful question. And that reminds me one other thing, I can probably inspire Nikhil and you and others, like that. But one time Mahavishnu Maharaj was interviewed, and the interviewer asked Maharaj, one young boy asked Maharaj one question, he was a young devotee. He said, Maharaj, what is the future of ISKCON? What is the future of ISKCON? Maharaj said, you are the future of ISKCON. Hari Bol, Srila Prabhupada ki okay, Madhu. लेकिन ऐसा है कि वो भगवद गीता या भागवतम में कहीं मैंने ऐसा भी पढ़ा कि बहुत ज्यादा हम जब पुण्य करने लगते हैं उसको भी भोगने के लिए हमें फिर आना पड़ता है। Oh yes. क्या है वो पुण्य? क्योंकि अभी हमने परोपकार की भी बात की। जी। तो क्या अंतर? Very simple illustrative example Prabhupada ji देते हैं कि feeding the hungry is punya. Feeding the hungry, Krishna prasadam, is devotional service. So once
people का good heart है, they are very nice people, generous people. They want to give donation, they want to do this, they want to look after the poor, they want to create some educational opportunities ना. Many people I've met here, आप अपने गांव में भारत में वो पाठशाला बनवाए हैं, उस स्कूल में मदद कर रहे हैं. So these are all punya activities. This should not be given up. It is good, but see how you can dovetail it into Krishna consciousness. Just like ISKCON has, this midday meal program, distributing so much prasadam every day. So it's devotional service. All the hungry children are getting food. That betters their opportunity for education, understanding, ability, and everything. But for us, आप उसमें योगदान दे रहे, स्पॉन्सर कर रहे हैं, it's your devotional service. ओके, ठीक है. जब प्रसाद की बात कर रहे हैं तो प्रसाद लेना चाहिए फिर. जय श्रील प्रभुपाद की जय. Wish you all, every one of you, a wonderful Krishna conscious journey, spiritual journey. Please continue to hang on to the shelter of Srila Prabhupada ji, and every day take Krishna consciousness more and more seriously. Hare Krishna. Thank you very much. महाप्रसादे गोविंदे महाप्रसादे